Student, I was teaching you tenses in my last videos, right? In my first video, I told you tenses with the help of some words. I told you the different forms of the word, that where can we use the first form or second form or the third form of the word. In my second video, I told you tenses with the help of some Hindi words, right? Students, I showed you that how can you rotate, different tenses, taking the different verbs and all, right? In my last video, I told you present perfect, right? Till now I have told you present indefinite, present continuous, present perfect. This time I am with you with present perfect continuous, right? Student, if you talk about present perfect and present perfect continuous tense, there is a slight difference between both of them. Student, often it happens that a student get confused in present continuous and present perfect continuous. There's only one difference between present continuous and present perfect continuous. If you talk about present continuous, you will find that the action will be continue, right? In present continuous, even in present perfect continuous, the action will remain continue. But what happens that in present perfect continuous, there is a time. You will find the time there, right? So often a student get confused and they make a wrong sentence, right? So let's see that what's present perfect continuous. If we talk about present perfect continuous, you will find that the past action recently stopped, right? What happened? That the past action recently stopped. The second thing is that the past action is still continuing. You will find that either the past action must have recently stopped or past action is still continuing. And if you talk about the syntax of present perfect continuous, you will find subject like perfect. You will find has or have there, and then being ing form of the word. That means we use ing in the first form of the word. With first form of the word, we add ing. Right? If we have write, we can write writing. If we have go, we can say going. If we have come, coming. So subject has or have been ing form of the word. Then we have object. Then we use since or for then time. In negative we have subject has or have not been ing form of the word, object since or for then time. In interrogative we have has or have subject been ing form of the verb since or for then time, right? In interrogative negative we have has or have subject not been ing form of the verb since or for then time, right? If we make the sentences out of it, Ram has been watching TV since morning. Ram has not been watching TV since morning. Has Ram been watching TV since morning? Has Ram not been watching TV since morning? If we talk about where can we use since or for, so in period of time, wherever the duration is given, right? Let's say that I have been teaching for 2 hours, right? I have been living in Lucknow for 20 years, right? And if you talk about the point of time, wherever is the point of time, you will find that the since will be used, right? What is the point of time when the exact point is given? Let's say, I have I have been living in Lucknow since childhood, right? So स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और अधिकतर स्टूडेंट जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसे वो इस तरह से बना लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या मान लो बच्चों ने कहा कि वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो उसे इस तरह से बना लेते हैं I am learning for 2 hours, right? Which is quite wrong, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। They commit mistake here। या वो कहते हैं, मान लो उन्हें कहना है कि वो बचपन से लखनऊ में रह रहे हैं, तो वो कहेंगे they are living in Lucknow since childhood। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर, या वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको यहाँ पर since या for लगाना है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल इतना डिफरेंस है कि जहां पर भी हमें रहा है, रहे है, रही है के साथ में जहां पर भी हमें समय मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लो मैंने कहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया।
मैंने कहा कि मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा कि मेरी मम्मी आज सुबह से खाना बना रही हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा कि बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा कि कोई खटखटा रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा कि कोई 10 मिनट से खटखटा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा कि बाहर बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैंने कहा कि आज सुबह से बाहर बारिश हो रही है या आज सुबह से बारिश हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इतना इसमें डिफरेंस होता है जो हमें अपने दिमाग में रखना है। वेल स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस भी इसकी काफ़ी मिलती जुलती, जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी मिलता जुलता होता है। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी हैज़ और हैव ही लगाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम हैव लगाते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हम हैज़ लगाते हैं। वही हमें यहाँ पर भी करना है, लेकिन उसके बाद हैज़ और हैव के बाद सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हैज़ और हैव हम लगाते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से हम हैज़ और हैव लगाते हैं। फिर हम इसमें बीन लगाते हैं, BEEN, बीन लगाते हैं। फिर हम इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। मान लो मेरे पास गो है, तो मैं उसे गोइंग कर दूंगा। मान लो मेरे पास कम है, तो मैं कमिंग कर दूंगा। मान लो प्ले है, तो मैं प्लेइंग कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आईएनजी के बाद हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर में से किसी एक को चूज कर लेते हैं। सिंस या फॉर में से हम कोई एक लगा देते हैं, फिर हम समय लगा देते हैं। अच्छा, जब हम सिंस या फॉर में से कोई लगा रहे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एग्जैक्टली अगर हमें टाइम दे रखा है, तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। जहां पर हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, यानी कि हमें ड्यूरेशन दी होती है, वहां पर हम फॉर लगा लेते हैं। सही है। मान लो कि मैंने कहा कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। अब ये जो 10 मिनट है, ये 10 मिनट की ड्यूरेशन है, राइट। तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, राइट। अगर मैंने कहा मान लो अभी 5:30 हुआ है, मैंने कहा कि मैं 5:20 से पढ़ा रहा हूं। अब मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5:20, राइट। तो हम इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। या मैं और एग्जांपल्स दे देता हूँ। मान लो कि मैंने कहा कि मैं पिछले 4 दिनों से उसके घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन गोइंग हिज हाउस फॉर लास्ट 4 डेज। मान लो कि 4 दिन पहले लेट्स से 4 दिन पहले मान लो वेडनेसडे था, तो मैंने कहा कि आई हैव बीन गोइंग हिज हाउस सिंस वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि मैं पिछले 2 महीने से मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैथ्स फॉर लास्ट 2 मंथ्स। मान लो कि मैंने कहा पिछले 2 महीने पहले, लेट्स से इट्स द मंथ ऑफ फरवरी, राइट। पिछले 2 महीने पहले इट वाज दिसंबर, तो मैं कहूँगा कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैथ्स सिंस दिसंबर, राइट। तो जहां पर भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, एग्जैक्टली टाइम बताया गया होगा, वहां पर हम सिंस लगाएंगे। और जहां पर भी हमारी ड्यूरेशन होगी, पीरियड ऑफ टाइम होगा, वहां पर हम फॉर को यूज कर लेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बहुत इजी है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को बनाया था, उसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी बना सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, दोनों में रहा है, रहे है और रही है होगा। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है, इतना इसमें डिफरेंस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे है और रही है तो होता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो वहां पर रहा है, रहे है, रही है के साथ में टाइम भी दे रखा होता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। स्टूडेंट, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, आप देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, मान लो कि मैंने कहा मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ में हम लगाते हैं हैव, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा, मैं लगाऊंगा बीन। पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो टीच हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैं आईएनजी लगा दूंगा, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग, मान लो कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे की हमारी ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो मैं यहाँ पे फॉर लगा दूंगा। मैं कितने घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 आवर्स हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स।
इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हैज या हैव के बाद में नॉट ले आएंगे। मैं कहूँगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसी का जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम हैज या हैव को पहले ले आएंगे, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसी का जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पर हैज और हैव को पहले लाके उसमें केवल नॉट लगा देंगे, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा कि मेरा दोस्त 1 घंटे से पार्टी कर रहा है। माई फ्रेंड हैज बीन throwing a party, पार्टी दे रहा है या पार्टी कर रहा है। My friend has been enjoying a party or throwing a party or having a party. My friend has been throwing a party for 2 hours. My friend has not been throwing a party for 2 hours. Has my friend been throwing a party for 2 hours? Has my friend not been throwing a party for 2 hours? 1 घंटे से बारिश हो रही है। It has been raining for an hour. 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। It has not been raining for an hour. क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है? Has it been raining for an hour? क्या 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है? Has it not been raining for 2 hours? Right? इसी तरह से हम और सेंटेंसेस को ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि उसका छोटा भाई सुबह से पतंग उड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, His younger brother has been flying a kite since morning. His younger brother has not been flying a kite since morning. Has his younger brother been flying a kite since morning? Has his younger brother not been flying a kite since morning? तो मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से अपने टॉपिक को समराइज कर देता हूँ। मैंने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, कोई काम हो रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया, आप देखोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था जो रिसेंटली अभी स्टॉप हुआ है, राइट, या पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और स्टिल कंटिन्यूइंग है, यानी कि अभी भी वो एक्शन हो रहा है। एक चीज मैंने आपको ये बताई। हाँ, फिर मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि जहाँ पर हमारी ड्यूरेशन होती है, वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि एग्जैक्टली हमने टाइम बता दिया होता है, वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। हाँ, एक चीज हमें और याद रखनी है स्टूडेंट, ये मैं आपको टिप के तौर पर बताऊंगा। देखो क्या करते हैं, ये जो फॉर है इसको हम सब टेंसेस में लगा सकते हैं, राइट, लेकिन अगर हम बात करें सिंस की तो यूजुअली इसको हम परफेक्ट में ही यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको परफेक्ट में बताया था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम हैव लगाते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में हम हैज को यूज करते हैं। हाँ, अभी मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में करा है, मैं एक बार सारे सेंटेंसेस को फिर से रोटेट करूंगा और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं कि जिनमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स के साथ में बताई थी, दूसरी वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन हिंदी की कुछ वर्ड दिए थे उससे बताई थी, फिर तीसरी वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, परफेक्ट, और ये वीडियो मैंने इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप देखो क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग वर्ड्स को ले सकते हो, आप अलग अलग फ्रेजेस को ले सकते हो और उसके बाद आपको उन वर्ड्स या फ्रेजेस को टेंसेस में रोटेट कराना होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसको ड्रिल कितना कर सको। आप देखो मैं आपको बताऊंगा, आप जो भी काम कर रहे हो आप हर उस काम को टेंसेस में रोटेट करो। मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले इंडेफिनिट में लेकर आता हूँ। मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई टीच इंग्लिश, मैं इंडेफिनिट में से पढ़ा रहा हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। इसी तरह से मैं इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेकर आता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं इसे परफेक्ट में जाता हूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है या मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ या मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, हैव आई टॉट इंग्लिश, हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। मैंने कहा कि मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। मान लो कि यहाँ पर मैं 10 साल से ना कहता ये 2023 है, मान लो मैं कहता कि मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2023, राइट। एक बार मैं आपको फिर से प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप कहोगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट।
I am playing cricket. I am not playing cricket. Am I playing cricket? Am I not playing cricket? I have played cricket. I have not played cricket. Have I played cricket? Have I not played cricket? I have been playing cricket since morning. I have not been playing cricket since morning. Have I been playing cricket since morning? Have I not been playing cricket since morning? Whatever you are doing, you can practice.